الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان قرآنی گرامر کا آج ہمارا درس نمبر 16 ہے، اور اس درس میں ہم جملہ اسمیہ کو کنٹینیو کریں گے، اور جملہ اسمیہ کا آج ہم چوتھا پارٹ پڑھیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک نارمل جملے کو کیسے ہم استفہام مطلب انٹراگیٹو سینٹنس بنائیں گے، یعنی سوالیہ ایک جملہ اسمیہ بنائیں گے. ایسا جملہ اسمیہ جس میں سوال پوچھا جاتا ہے، یعنی ایک جملہ اسمیہ میں کیسے آپ کسی کو سوال پوچھتے ہیں، اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. آج اس درس میں اسی چیز کے بارے میں جانیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں استفہام یا جملہ اسمیہ استفہامیہ. ایسے جملہ یعنی اسمیہ جن میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سوال پوچھتے ہیں، کیسے سوال پوچھتے ہیں اور کیسے ان سے جواب لیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا، استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا، اور کسی بھی شخص سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو دو طرح سے اس سے سوال پوچھا جاتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سوال پوچھا جائے جس کا جواب ہاں یا نہیں ہوتا ہے. یعنی جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، کیا اس وقت صبح ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. کیا میں کہوں گا اس وقت رات ہے؟ آپ کہیں گے ہاں. تو ایسا سوال جس میں جواب جو ہے ایک لفظ کے صورت میں دیا جاتا ہے، ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ایسے استفہامیہ جملہ اسمیہ کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ابتدا میں، ان کو ہم کہتے ہیں حروف استفہامیہ. اور وہ دو حروف ہیں، ایک تو ہے حمزہ کے اوپر زبر، جس کو ہم پڑھیں گے آ، اور دوسرا ہے حل. آ اور حل یہ دو ایسے حروف ہیں جن کو ہم حروف استفہامیہ کہتے ہیں یا حروف استفہام کہتے ہیں. یہ اس وقت جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں استفہام کا معنی لانے کے لیے جب ہمارے سوال کا جواب ہاں یا نہیں ہوتا ہے، یعنی ایکسپلینیشن دینے کی، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یاد رکھیے گا، جملے میں آ یا حل استعمال کرنے کے بعد کوئی بھی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یعنی جب بھی آپ کو کسی بھی جملہ اسمیہ کو استفہامیہ بنانا ہے، اس کو انٹراگیٹو سینٹنس بنانا ہے، اس سے پہلے آ یا حل لائیں گے. بس آ یا حل لانے کے بعد باقی کوئی بھی چینج اس جملے میں نہیں کریں گے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک جملہ ہے ھذا قلم، ترجمہ ہے یہ قلم ہے. اگر ہم اس سے پہلے لگائیں گے حل ھذا قلم، ترجمہ ہو گیا کیا یہ قلم ہے. انہیں حل لگانے کا ترجمہ کیا، حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں اھذا قلم، کیا یہ قلم ہے. تو چاہے آپ حمزہ زبر آ لگائیں، چاہے آپ حل لگائیں، ابتدا میں جملہ اسمیہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اعراب کی یعنی کنڈیشن جو ہے ویسی ہی رہتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں اعرابی حالت جو ہے یہ رفع میں ہے. حل یا آ لگانے سے اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی، ہاں ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی تک یہ ھذا قلم جو لفظ تھا یا جملہ تھا، یہ ہمارے پاس یعنی مثبت جملہ تھا، ایک پازیٹیو جملہ تھا. بٹ جب آپ نے حل یا
इब्तिदा में लगाया, ये बन गया हल हादा कलमुन, क्या ये कलम है, अहादा कलमुन, क्या ये कलम है। ठीक है, इसके जवाब में आप एक लफ्ज बता सकते हैं। अगर ये हाँ है तो आपने कहा नाम, नाम का तर्जुमा होता है हाँ, या आप बता सकते हैं ला, ला का तर्जुमा होता है नहीं। तो जैसे आपने सवाल पूछा, उसके जवाब में नाम, अगर रिस्पॉन्स है पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, यस हाँ, तो आप कहेंगे नाम, अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे ला। और दोनों सूरतों में जोर देने के लिए एक एक्स्ट्रा लफ्ज लगाया जाता है जिसको कहते हैं बला। बला का तर्जुमा आता है जोरदार हाँ के लिए, यानी जब आप कहेंगे नाम, ये भी हाँ हो गया, मगर अगर आप जब कहेंगे बला तो इसमें ज्यादा जोर पाया जाता है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह ने तमाम अरवा को जमा किया था मीसाक के दिन, हमें दुनिया लाने से पहले, तो अल्लाह ने हम सब से सवाल पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं या क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। एक सवाल हमसे पूछा गया था, कुरान मजीद में है, हम सब ने जवाब दिया था क़ालू बला, हमने सब ने जवाब दिया था, हमारी रूहों ने जवाब दिया था ए रब। क़ालू, हम सब ने जवाब दिया था बला, बला मतलब जी हाँ, जोरदार हमने इकरार किया था। इन्हें न सिर्फ इकरार किया था, हमने सिर्फ नाम नहीं बताया था, बल्कि बला, हमने इकरार जो किया था वो जोरदार इकरार किया था। तो सूरह यूसुफ में आता है इन्नका लअंत यूसुफु, क्या क्या वाकई तू ही यूसुफ है। इन्हें सवाल पूछा जाता है इन्नका, क्या वाकई, लअंत, क्या यकीनन आप, यूसुफु, यूसुफ हो। यानी जब भी किसी चीज पे जोर दिया जाता है तो बला यूज किया जाता है। तो बला कहने के बाद उस यानी इकरार में कोई भी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं हो। तो ये तो था पहले नंबर का सवाल कि जब आपने किसी से सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब हाँ या नहीं है, नाम या ला है। दूसरा तरीका यह है कि दूसरा सवाल ऐसा होता है जिसमें वजाहत की जरूरत पड़ती है, सिर्फ हाँ या नहीं नहीं बता सकते। ऐसे सवालों के लिए हमारे पास अस्मा मौजूद है, हरूफ नहीं बल्कि अस्मा। उन अस्मा को कहते हैं अस्माए इस्तिफहामिया, या सिंपली उनको हम कहेंगे अस्माए इस्तिफहाम। ठीक है, जब आपके पास ऐसा कोई सवाल पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको कहूंगा आप कहाँ रहते हैं, अब इसका जवाब तो ये नहीं आएगा हाँ या नहीं, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। मैं जद्दा में रहता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, इस शहर में रहता हूं, इस गली में रहता हूं। तो इसमें हमने एक्सप्लेन किया, अपने सवाल के जवाब को हमने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे सवालों के लिए जुमला इस्मिया से पहले कुछ अस्मा इस्तेमाल होते हैं जिनको हम कहते हैं अस्माए इस्तिफहामिया या सिंपली अस्माए इस्तिफहाम। अस्माए इस्तिफहाम बहुत सारे हमारे पास है अरबी में, जैसे मा हो गया, मन हो गया, आइना, लिमा, कैफा, मता, अय्याना, अन्ना, अय्युन, कम। ये कुछ अरबी के कुछ ऐसे अस्मा है, कुछ ऐसे अल्फाज है जिनको हम अस्माए इस्तिफहाम कहते हैं। ये उस सूरत में यूज होते हैं जब आपके सवाल के अंदर, यानी आप चाहते हैं कि आपके जवाब, जो भी आपको जवाब दे, उसमें एक्सप्लेनेशन हो, उसमें सिर्फ हाँ या नहीं ना हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास दो तरह से सवाल है, या तो ऐसे सवाल है जिनका जवाब यस और नो में होता है। ऐसे अस्मा के लिए जब हम ऐसे सवालात पूछते हैं तो हमारे पास हमजा जबर आ या हल होता है, जैसा कि ऊपर मैंने मिसाल दी। मगर अगर आपके पास कुछ ऐसे अस्मा है, यानी ऐसे सवालात है जिनके जवाबात के लिए तफसील चाहिए, तो उनको यानी उनको पूछने के लिए आपको सबसे पहले आपको जुमला इस्मिया में कुछ ऐसे अस्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा इब्तिदा में, जिनको हम अस्माए इस्तिफहाम या अस्माए इस्तिफहामिया भी कहते हैं। मा, मन, आइना, लिमा, कैफा, मता, अय्याना, अन्ना, अय्युन, कम। ये कुछ ऐसे अल्फाज है जो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे।
याद रखिएगा कि अस्माए इस्तिफाम इसम के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल कर देते हैं, ठीक है। और तमाम अस्माए इस्तिफाम जो है ये मबनी है। मबनी मतलब ये जो हमारे पास एराब के 3 कंडीशन है, रफा, नस्ब और जर। तीनों कंडीशन में चाहे आप रफा में सवाल पूछे, नस्ब में सवाल पूछे या जरी हालत में आपके पास सेंटेंस हो, तो माँ ही रहेगा, मन ही रहेगा, आईना आईना ही रहेगा। तो ऐसे यानी अस्मा को जो तीनों हालतों में सेम रहते हैं उनको हम मबनी अस्मा कहते हैं। सिवाय अय्युन, सिर्फ एक इसम इसमें है अय्युन, ठीक है। ये मुनसरिफ है। मुनसरिफ मतलब इसमें यानी 2 कंडीशन होते हैं। मुनसरिफ यानी इसमें 3 कंडीशन होते हैं। ये अय्युन भी आएगा, अय्यन भी आएगा, अय्यन भी आएगा, ठीक है। और ये हमेशा मुजाफ बन के आता है। सिर्फ एक के बारे में आपको याद रखना है, बाकी मा, मन, आइना, लिमा, कैफा, मता, अय्याना, अन्ना, कम, ये आप जब भी जुमले के साथ देखेंगे, जुमला इस्मिया के साथ देखेंगे, ये हमेशा मबनी होंगे, इसमें तब्दीली नहीं होगी। एराबी कंडीशन तीनों हालतों में ऐसी ही रहेगी। अब हम इन अस्माए इस्तिफाम को एक एक करके उठाएंगे, फिर मिसालों के जरिए जवाब देंगे कुरान मजीद के हवाले से। सबसे पहले है अस्माए यानी इस्तिफाम में, वो है माँ। माँ का तर्जुमा है क्या, वट, जो इंग्लिश में कहेंगे वट। जैसे मैं कहूंगा मा हादा, ये क्या है, ये क्या है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा हादा कलम। तो पूरा जवाब इसमें हाँ या नहीं नहीं आएगा। हादा किताब, ये किताब है, ठीक है। हादिही बकरतुन, ये गाय है, ठीक है। हादिही मिरवहतुन, ये पंखा है। यानी जो भी सवाल पूछा जाता है उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मा हादा, ये क्या है, माँ का तर्जुमा है क्या, हादा है जो हमारे पास यानी इसम है, हादा, मा हादा ये क्या है, जुमला इस्मिया। या मा इस्म का, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, माँ क्या, इस्म का तुम्हारा नाम, आपका नाम, मा इस्म का। तो अरबी में जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मस्म का, क्योंकि मीम को सीन के साथ मिलाते हैं, ये जो दोनों अलिफ है ये खत्म हो जाते हैं, मस्म का, मस्मुक, मस्मुक तुम्हारा नाम क्या है। या आप ऐसे पढ़ सकते हैं मा इस्म का, तुम्हारा नाम क्या है। इसी तरह एक है हमारे पास मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, आपका दीन क्या है। कब्र में जो सवालात पूछे जाएंगे उसके बारे में हदीस में आया है, 3 सवालात हमसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले कहा जाएगा मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। मन नबीयु का, तुम्हारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है। ये तीनों सवालात हमें कब्र में पूछे जाएंगे। तो उसमें एक सवाल है मा दीनु का, तुम्हारा दीन, तेरा दीन क्या है। तो माँ हो गया क्या। इसी तरह कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में है, जब उनको बनी इसराइल को कहा गया था कि गाय को ज़िबा करे, तो उन्होंने सवाल पूछा मा लौनुहा, माँ यानी क्या, लौनुहा उसका रंग क्या होगा। हा का है तर्जुमा, तो हा जो तर्जुमा आता है, हा जो ज़मीर आती है ये मुअन्नस के लिए आती है, और बकरा जो है गाय, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मा लौनुहा, उनने सवाल पूछा, उनने जवाब दिया, यानी सवाल पूछा मा लौनुहा यानी उसका क्या रंग होना चाहिए, उस मुअन्नस का यानी उस गाय का रंग क्या है। इसी तरह सूरह तोहा आयत 17-18 में है वमा तिल का, वा का तर्जुमा है क्या, ठीक है। इसमें बहुत सारे वाह है हमारे पास, कभी कभी इसको वाव अतफिया भी कहते हैं, हमारे पास बहुत सारे वाह है, इसको हम आगे तफसीलन बयान करेंगे। और अक्सर ये यानी इस्तिस्नाइया भी है कि इब्तिदा से व से इस्तेमाल होता है, क्योंकि अरब में अक्सर चीज़ें जो कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं तो वो व से इस्तेमाल करते हैं। वमा, और क्या, तिल का दूर के लिए इस्तेमाल होता है। वमा तिल का बियमीनिका या मूसा, और क्या है वो तेरे दाएं हाथ में है मूसा। यमीन कहते हैं दायां हाथ, यमीन निका यानी तुम्हारा, बी है ना, बी हरफी जारा, उसकी वजह से बी यमीनिका, यमीनिका।
یعنی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ؟ قال، اس نے کہا، ہی عصای، ہی یہ لاٹھی ہے میری، ہی کیونکہ لاٹھی جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کے لیے یہاں پر ہی استعمال ہوا استعمال نہیں ہوا۔ قال ہی عصای، اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ تو ماں جب استعمال ہوا جس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کے ترجمے کے جواب میں یا سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، اس نے کہا، ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے۔ تو ماں جو ہے یہ پہلا ہمارے پاس اس میں استفہام ہے، یعنی یہ ابتدا جملے کے ساتھ جب آئے گا جملہ اسمیہ کے ساتھ، تو جملہ اسمیہ کو یہ استفہامیہ یا سوالیہ انٹراگیٹیو کوسچن مارک والا سینٹنس بنائے گا۔ دوسرا ہے من۔ من ہمارے پاس دوسرا اس میں استفہام ہے، یہ بھی جب ابتدا میں آئے گا تو جملے کو استفہام یعنی انٹراگیٹیو بنائے گا، ایکسپلینیٹری انٹراگیٹیو بنائے گا۔ من کا ترجمہ ہے کون، انگلش میں کہیں گے ہو، جیسے قرآن میں سورہ آل عمران آیت 52 میں کہا گیا ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے دوست یا میرے دوست، انصاری مدد کرنے والے، کون ہے میرے مدد کرنے والے، الی اللہ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے میرے دوست اللہ کے خاطر، من انصاری الی اللہ۔ اسی طرح من انت، جب آپ سے پوچھا جائے گا من انت یعنی آپ کون ہیں، تو کون ہے۔ اسی طرح قبر میں جو سوال پوچھا جائے گا، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، من کون، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہم جواب دیں گے ربی اللہ، ہمارا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 16 میں ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا، لمن الملک اليوم، لی جو ہے یہ کس لیے آ گیا، اس کے بعد من تھا، مگر من جو ہے اس کو نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو نون کے نیچے زیر آ گئی، اصل میں یہ ہے لی من الملک الیوم، یعنی کس کے لیے ہے آج حکومت، یعنی آج کی حکومت کس کے لیے ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا، لمن الملک، کس کے لیے ہے ملک، الیوم، آج کے دن، یعنی آج جو خاص دن ہے، آپ کو پتہ ہے الف لام لگانے سے الیوم خاص بن گیا، یہ قیامت کا ذکر ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرمائے گا، للہ الواحد القہار۔ آپ دیکھیں الملک کو اصل میں جواب جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ، یعنی یہ جو ملک ہے یہ اللہ کے لیے ہے جو واحد اور قہار ہے۔ مگر آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے پاس جو مبتدا ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، تو مبتدا حذف ہے، اس کے برعکس میں للہ الواحد القہار، یعنی یہاں پر متعلق خبر کو لایا گیا ہے ابتدا میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سینٹنس میں کافی زیادہ زور دیا گیا ہے، حصر ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یعنی پوچھا جائے گا کس کی حکومت ہے، یعنی کس کی حکومت ہے آج، پھر اللہ جواب دے گا کہ آج جو حکومت ہے یہ اللہ اکیلے زبردست کی ہے، یعنی اللہ اکیلے زبردست کی آج حکومت ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ من جب پوچھا جاتا ہے اس سے بھی سوال پیدا کیا جاتا ہے، اور سوال کا ایک ایکسپلینیٹری آنسر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا ہے اس میں استفہام، وہ ہے آئینہ۔ آئینہ کا ترجمہ ہے کہاں، انگلش میں کہیں گے وائر۔ آئینہ اخو کا، کہاں ہے تیرا بھائی۔ آئینہ شرکائی، سورۃ القصص میں اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، آئینہ کہاں ہے، شرکائی، میرے وہ شریک، یعنی جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہے وہ شریک، یعنی میں تو واحد تھا، میں تو اکیلا تھا، مگر تم نے مجھے شریک ٹھہرائے تھے، آج بتاؤ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، آج میرے شریک کہاں ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 10 میں ہے، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہاں ہے جہاں تم آج بھاگ سکتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انا، یعنی انا الملک، یعنی میں ہی بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ یہ دیکھیں نا، یہاں پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انا،
यानी अनल मलिकु, मैं आज बादशाह हूँ, मलिकु अनल मलिकु यानी मैं बादशाह हूँ। आइन मुलुकुल अर्दी, और कहाँ है दुनिया के वो बादशाह। इसी तरह चौथा है लिमा। लिमा का तर्जुमा है क्यों, वाई। जब आप किसी को कहते हैं ना कि आपने ये किया, फिर आप उसको कहते हैं क्यों किया, वाई यू डिड दिस, तो वाई जो है वो लिमा के लिए इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा कि लिमा के लिए जो हमारे पास मिसालें हैं वो हम जुमला फेलिया में देंगे इंशाल्लाह। जुमला इस्मिया में लिमा के लिए ज्यादा मिसालें नहीं है। इसके बाद है कैफा। कैफा भी इस्तेमाल होता है। ये एक इसमें इस्तिफाम है जो जुमले के इब्तिदा में आके, यानी जुमला इस्मिया के इब्तिदा में आके उसको इस्तिफाम बनाता है, उसको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाता है, और उसको भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कहूंगा कैफा हालुका, कैफा हालुका, तुम्हारा हाल कैसा है या आप कैसे हैं। अरबी में अक्सर ये पूछा जाता है कैफा हालुका, उसका जवाब है अना बिखैर, अना बिखैरिन या अना बिखैर, मैं खैरियत से हूं। कैफा नदीर, कैफा नदीरी भी कह सकते हैं, नदीर यानी कैसा था मेरा डराना। अल सूरतुल मुल्क में अल्लाह फरमाएगा कैफा नदीरी, आ कैफा नदीर यानी कैसा था मेरा डराना। जब कयामत के दिन लोग उठेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि अल्लाह ने जो तुम्हें दुनिया में डराया है मुख्तलिफ तरीकों से, वो कैसा था। इसके बाद है मता। मता या अय्याना, ये दोनों इस्तेमाल होता है कब के लिए, व्हेन इंग्लिश में कहेंगे। मता नसरुल्लाह, कुरान में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब पुराने लोगों पे, अंबिया पे या उनके फॉलोअर्स पे जब आजमाइशें आई थी, तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया मता, कब, नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। सूरतुल बकरा की आयत है। मता हादल वादु, इसी तरह मुशरिकीन ने कहा गया, मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या वो कहते थे मता हादल वाद, कब होगा ये वादा पूरा, यानी तुम जो कहते हो कि कयामत नजदीक आएगी, कयामत आएगी, ये वादा कब पूरा होगा। सूरह यूनुस की आयत। इसी तरह अय्यान यौमुल क़ियामा, कब आएगी, यानी कब होगा कयामत का दिन। यानी अय्याना मता ये इस्तेमाल होता है जब भी कब, यानी जुमले में हम किसी से पूछते हैं कब ये चीज होगी, कब वो ऐसे होगा। इसी तरह मता हादल वादु, कब होगा ये वादा। अय्यान यौमुल क़ियामा, कब होगा क़यामत का दिन। इसके बाद है एक और इस्म अन्ना। अन्ना का तर्जुमा है कहां से, किस तरह, क्यों कर। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना हाउ कम, वेयर फ्रॉम, मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया या मरियमु, या मरियमु, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने महराब में अल्लाह की इबादत कर रही थी, और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे और उन्होंने सवाल पूछा, ठीक है। या मरियमु अन्ना लकी हादा, ए मरियम, अन्ना, किस तरह, लकी हादा, ये तुम्हारे पास है। यानी उसके पास अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे यानी गैर मौसम के फ्रूट्स रखे थे वहां पर। और जकरिया अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे अंदर, उन्हें देखा कि बहुत सारा खाना है जो उस वक्त सीजन भी नहीं है, तो उन्होंने पूछा इनसे या मरियमु अन्ना, यानी क्यों कर, कैसे, कहां से, लकी हादा, तुम्हारे पास से ये चीजें आई। कौलत, उसने कहा, हुआ ये, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से, यानी ये तमाम चीजें मुझे अल्लाह के पास से आई हैं। सूरह फजर में है अन्ना, क्यों कर, कैसे, कहां से, लहुल जिक्रा, यानी कहां की उसके लिए है याद दहानी, कहां की उसके लिए है याद दहानी। यानी अन्ना का तर्जुमा क्यों कर भी आ सकता है, किस तरह भी आ सकता है, कहां से आ सकता है। इसके बाद है अय्युन। अय्युन का तर्जुमा है कौन सा, इंग्लिश में कहेंगे विच। जैसे हम कहेंगे अय्यु शाइइन, अय्यु शाइइन, कौन सी चीज, ले अय्यि यौमिन, कौन से दिन के लिए। आप देखें ना, अभी तक जो अन्ना था, मता था, यानी जुमला इस्मिया जिस भी अराबी हालत में था, हमने देखा कि ये बाकी जितने भी हमारे पास अस्माए इस्तिफाम थे वो एक ही कंडीशन में रहे। उनकी तब्दीली, उनके जो अराबी कंडीशन है वो चूंकि मबनी है, इसलिए वो हर हालत में एक जैसे दिखाई दिए।
मगर अय्युन को आप देखें, यहां पर है अय्यु शैइन, तो अय्यु शैइन कौन सी चीज, यहां पर चूंकि लि पहले है हर्फ जारा, लि अय्य, तो इसकी वजह से अय्युन जो है या अय्यु तब्दील होगा अय्यी में, ये भी जरी हालत में आ गया। लि अय्य यौमिन, कौन से दिन के लिए, बि अय्य अर्दिन, बि हर्फ जारा, अय्यु जो था वो अय्यी में तब्दील हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया अय्यु जो है ये हमारे पास रफा नस्ब जर में अलग अलग शक्लों में होगा, क्योंकि मुनसरिफ है। बिअय्य अर्दिन, कौन सी जमीन पर, बिअय्य हदीसिन, कौन सी बात पर, फी अय्य सूरतिन, कौन सी शक्ल में, बिअय्य आलाइ रब्बिकुमा, जैसे हम पढ़ते हैं ना फबिअय्य आलाइ रब्बिकुमा, तर्जुमा तुम दोनों के रब की, यानी तुम दोनों के रब की नामतों में किसका, बिअय्य यानी कौन सा, किस तरह, किसका, आलाइ रब्बिकुमा, दोनों रब की नामतों में से, अय्युल फरीक़ैनि, दोनों ग्रोहों में से कौन सा, तो अय्यु का तर्जुमा है कौन सा, ये भी जब जुमला इस्मिया के इब्तिदा में आता है, ये हर्फ यानी ये हमारे पास इसमें इस्तिफाम है, तो जुमला इस्मिया को भी इस्तिफामिया बनाता है। इसी तरह है अय्युन प्लस अंतुम बनेगा अय्युकुम, कौन तुम में से कौन सा, इसी तरह अय्युन प्लस हुम बनेगा अय्युहुम, उनमें से कौन सा। इसके बाद है कम, कम का तर्जुमा है कितना, किस कदर, हाउ मच, हाउ मनी। याद रखिएगा इसका जो अमल है ये वाहिद नकरा अगर इस इसम पर दाखिल होता है, अगर कम हमारे पास वाहिद नकरा इसम पर दाखिल होता है तो उसे हालत नस्ब में ले जाता है, और उस वक्त इसको कम इस्तिफहामिया भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कम अखन लका, असल में था अखुन, ठीक है, ये चूंकि वाहिद ये यानी वाहिद नकरा इसम पर दाखिल हो गया, अखन ये अखुन था, चूंकि ये वाहिद नकरा इसम है तो ये तब्दील हो गया हालत नस्ब में, अखुन बन गया अखन। कम अखन लका या कम अखल लका, तेरे कितने भाई है, आपके कितने भाई है। कम वलदन लका या वलदल लका, आपके कितने बेटे हैं, असल में था वलादुन, मगर कम की वजह से चूंकि मैंने आपको बताया ये वाहिद नकरा इसम पे दाखिल होके उसको तब्दील करता है, इन्हें रफा से निकलकर उसको हालत नस्ब में ले आता है। कम किताबन इंदका, तेरे पास कितनी किताबें हैं। जब इस सूरत में ये कम इस्तेमाल होता है तो उस सूरत में इसको कम अमलिया कहते हैं। कभी कभी हमारे पास कम खबरिया भी होता है, कम जब खबर देने के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके माने यानी कितने या बहुत से के होते हैं, इस वक्त उसे कम खबरिया कहते हैं। उसकी पहचान ये है कि उसके बाद हर्फ जारा मिन आता है जो इसम को हालत जर में ले जाता है। जैसे कम मिन अब्दिन, कम के बाद अगर हमारे पास हर्फ जारा आ गया तो जो हमारे पास इसम होगा वो जर में आ जाता है, जैसे उसका उस वक्त तर्जुमा आ जाता है बहुत या कितने। कम मिन अब्दिन के तर्जुमा आएगा कितने ही गुलाम, कम मिन कर्निन, कितने ही जमाने, कम मिन साइमिन, कितने ही रोजेदार, कम मिन काइमिन, कितने ही क़ियाम करने वाले, कम मिन फिअतिन कलीलतिन, कितने ही छोटे ग्रुप। तो कम खबरिया उस वक्त कहलाता है अगर कम के बाद हर्फ जारा आए और उसके बाद जो इसम है वो मजरूर आए, उस वक्त इसको कम खबरिया कहते हैं और उसका तर्जुमा कितने ही या बहुत से बन जाते हैं। तो इस तरह हमने आज का जो लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा है इस्तिफहाम के बारे में, यानी जुमला इस्मिया को कैसे हम इस्तिफहामिया बनाएं, उसके लिए किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होती है। या तो हमारे पास हरूफ इस्तिफहाम यूज़ होते हैं जब हमारे पास जवाब हाँ या नहीं होता है, या हमारे पास अस्माए इस्तिफहाम होते हैं जब हमारे पास एक्सप्लेनेशन देना होता है। हमने सिर्फ ये जाना कि अस्माए इस्तिफहाम सब हमारे पास अस्माए इस्तिफहाम मबनी है, तीनों हालतों में रफा नस्ब जर में एक शक्ल में होते हैं। सिर्फ अय्युन जो कि मुनसरिफ है ये तीन शक्लों में होगा, और कम के बारे में जाना ये अमली भी हो सकता है या इसको हम खबरिया भी कह सकते हैं। मुमकिन है कि आपको आज का लेक्चर बहुत आसान लगा होगा, इंशाल्लाह आसान भी है, बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई, बहुत सारे अरबी अल्फाज इसमें आ गए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये अल्फाज आप देखें, इसके बाद इसका तर्जुमा करना सीख लें। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे
کہ اب ہم قرآن مجید سے الفاظ لے کے ان میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔